I'm sure I've intrigued you guys into knowing more about these phones. I'd like to invite the tech masters on stage with me right now to tell us more about the unique features of the Poco X3 Pro and Poco F3. Let's kick off this conversation by welcoming our guest, but first and foremost, my co host Atir Salamat, product manager from Poco Pakistan, also joining us on stage. Akram Ali from Pro Pakistani and Tech for Test, Ali Abbas from Mass Tech. We've also got Umar Khan, also known as Ukhano, who's a lifestyle influencer and vlogger of Pakistan, joining us on stage. Welcome to our guests here with me on stage. They are going to be talking about the Poco X3 Pro and Poco F3 and walking us through some of the features. So my first question is to you, Yukhano. How do you think photography has evolved over the years, and do you think these phones add to it? Khalid bhai, first of all, back in the day, the medium of consumption for content wasn't phones. We had DSLR cameras, everybody had it in their college. You used to roam around, take pictures, and then post them to your Facebook and all. But over the years, you got new phones, you got better phones. Obviously, we couldn't afford them back then, but then we had the different phones, and then you get smartphones like these, right? So when now you're traveling and creating content, for instance, someone like me who's hiking up with trails and had to carry heavy cameras with drones and cameras and DSLRs. Now I have a phone as a secondary camera where I have to create content on the go. If there's something happening, I don't have to take out my bag, zip it up, and then take out the camera and shoot. I just take out my phone, capture it, and you have that same result that you can get from the camera on your phone, but instantly and quicker. And you can then share it faster as well because your phone has your Instagram and your Facebook. From a DSLR camera, you had to take out the memory card, copy the footage, edit it, and then now you have it all in a one-stop solution. So it has evolved a lot over the ages, and that's why you have instant content on phones and cameras. So as a follow-up to that, do you think phones have changed the entire game of photography, and can they now be can they replace what we know as conventional cameras? It has changed the game not just for camera enthusiasts. Now everybody is a content creator. Now everybody can create content, edit with apps, and post them to their Instagram and become an influencer or a content creator. So it has changed immensely. Now you don't have to go for an expensive camera or an expensive lens and an expensive tripod or an expensive microphone. You just have a phone which has the camera, which has a selfie, which has the mic and the audio devices, right? So for that, it has leveled the playing field. Like before, you had a professional cameraman and you didn't have someone who can shoot with the phone. They would laugh at them like, "It's because the camera nahi hai, yaar, ye kya kar rahe hain?" But now you can create content with this. So it has really changed, and it has replaced the four cameras completely. Like for me, I used 70% of the content that I create is with the phone, and the 30% is when I have the time to use my camera. So that's how much it has changed. Got it. Atir? So let's talk about the performance upgrade. Ali Abbas, you are a gamer yourself. काफी ज़बरदस्त gamer हैं आप. So as you know that we introduced Poco X3 with a Snapdragon 732G, and with the Poco X3 Pro we have introduced Snapdragon 860. So how important do you think this performance upgrade is? What is your take on it? आदिर भाई एक्चुअली पाकिस्तान की मार्केट की लोकल अब एक रियलिटी है. गेमर्स एक्चुअली ई स्पोर्ट्स जब से सेलफोन में कन्वर्ट हुई है उसी तरीके से ग्रो कर रही है, और जितनी भी हमारी यूथ आ रही है ऑब्वियसली बात अपना कैरियर बनाना चाहती है, और दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज ऑफ बजट क्योंकि सब ज़्यादातर मिडिल फैमिली से करते हैं डिपेंड. तो पोको X3 वाज बेस्ट फोन फॉर दोज जिनके पास उस रेंज का कोई बजट था, and they want higher refresh rate, they want best gaming device for their channels, for their some game parts. In Poco X3 Pro मैं ये सोचता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है प्रोसेसर को लेके, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि आजकल ई स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, और इसमें एक टॉप ऑफ द लाइन एक परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर जो कि इससे पहले हमने किसी भी डिवाइस में आज तक पाकिस्तानी मार्केट में नहीं देखा. स्नैपड्रैगन 860 अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया स्नैपड्रैगन की तरफ से, और हमें अब पोको X3 Pro में मिल रहा है. और जिस प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च किया जा रहा है, यहाँ जीपीयू बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी हम ई स्पोर्ट्स पर काम करते हैं, कोई भी हम लोग एमुलेटर बनाते हैं या पीसी बनाते हैं, तो हमारे लिए ग्राफिक कार्ड जो होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत मैटर करता है. तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन पोको X3 Pro में X3 से इतना बड़ा अपग्रेड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा. और मेरे ख्याल में
जो गेमर्स 40 to 45,000 की डिवाइस की प्रोडक्ट की रेंज रखते हैं, आई थिंक सो ये किल करेगा सबको। कोई भी इसको compete नहीं कर सकता फॉर गेमिंग पर्पस के लिए, या अगर आप इसको हैवी टास्किंग, जैसे कि युखानो ने बताया कि एक सेलफोन बहुत ज़रूरी है अब हमारी लाइफ में। आजकल सब इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो आप स्नैपड्रैगन 860 को उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि अगर आप एडिटिंग भी आप करना चाहो, नॉर्मल एडिटिंग से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। UFS 2.2 स्टोरेज से आपको एडिटिंग की रेंडरिंग स्पीड, GPU अच्छा काम करता है, मतलब ऑल ओवर एक ऐसा पैकेज है जो कि आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो एज अ टेकी पीपल भी, एज अ गेमर पीपल भी। तो मेरे ख्याल में डे टू डे यूजेज में यहाँ पर हैवी टास्किंग के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बहुत बड़ा अपग्रेड है पोको X3 Pro में एज अ परफॉर्मेंस वाइज फ्रॉम पोको X3। Yes, I think this is the core philosophy of Poco कि आपको एक मिड रेंज सेगमेंट में एक हाई एंड फीचर्स आपको Poco प्रोवाइड करता है। यस, और इस तरह के प्रोसेसर्स, इस तरह के GPUs, इस तरह की परफॉर्मेंस, आज से अगर हम 1 साल पहले जाएं तो हम लोग 1-1 लाख रुपए में बाय कर रहे होते थे। तो मेरे हिसाब से प्राइस फैक्टर, परफॉर्मेंस फैक्टर, ये दोनों चीज़ों में compete करता है पोको X3 Pro। My question is for you, Akram. You obviously use smartphones a lot. When you buy one, what do you consider before buying one? What do you analyze? Or what do you look for before buying one? You know, before a tech reviewer, I'm also a user, a consumer who has to buy products. Yeah. And you will second me on this that it's not the era where I have to go for just one feature. Everyone is looking for all in one. We are looking for big things in small packages with a very, competitive price, but all the features, they have to be top notch. If we talk about anything which is lesser than top notch, you would not go for that, Ukhano would not go for that, anyone would not go for that. And on the cherry on top is that we have a competitive price, and if we are getting something which used to be in 100,000 rupees, now we are getting it like in 50 or 55 or lesser than that. It's an ideal deal. Talking about buying, what I consider while buying a smartphone, तो उर्दू में थोड़ा सा इसको करूँगा कि I need to have everything powerful. It has to be a beast, because पोको की जो सबसे अच्छी बात है कि इनकी डिवाइसेस सिर्फ किसी एक ऑडियंस सेगमेंटेशन के लिए नहीं है। Say. ये everyone can use it. The processor, it has to be powerful. The camera, it has to have all those magical elements which should make my memories more colorful. Say. Then I should have a proper display with refresh rate, which has now become the need of the day. I should have a longer battery, so I can use my phone as long as I want, and then the memory and other things which complement the whole thing. So it has to be a full-fledged package when I go for a phone, and if I get something in a lesser price tag, obviously I would not miss that deal. Nice. So Ali, let's talk about the most important point, the pricing of these phones. So what do you think about the pricing? What were you expecting? Was it too low? Was it too high? What is your take on it? आदिल भाई, बीइंग अ ह्यूमन, इंसान ना शुक्र है, हमेशा ज़्यादा मांगता है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ही होती है, हमारी नहीं, मतलब देखने वाले यूज़र सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। बट सीरियसली जब भी मैं पोको के बारे में एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई ग्लोबल लॉन्च जब होती है उसकी प्राइस को लेके कि भाई ये प्राइस आएगी, पोको हमेशा से ही उससे एग्रेसिव प्राइस में दे देता है और मेरी एक्साइटमेंट 4 गुना ज़्यादा हो जाती है प्राइस को लेके स्पेशली। और ये पाकिस्तान की मार्केट की क्या, पाकिस्तान जैसे जितने भी कंट्रीज हैं उनकी रियलिटी है, प्राइस मेन फैक्टर होता है। जब भी कोई बायर जाता है मार्केट में, वो पैसे लेके जाता है ना, उसने अपना एक रेंज बनाया कि अगर मुझे थोड़े बहुत बढ़ाने भी पड़े 1000-1500 में बढ़ा लूंगा, तो वो हमेशा से उस प्राइस सेगमेंट में उतार देता है डिवाइस कि जिसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जाके पैसे देने और डिवाइस लेनी है, सिम डालनी है और उस पर वो काम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम लोग। As Akram bhai said, I called him the other day, and internally being the fellow YouTubers and तो मैंने इससे पूछा कि क्या सीन है ना, क्या प्राइस आने वाली है, तो he was like 62-63 होगी। वो X3 Pro का भी मैंने 45 काउंट किया था, so 43-45 होगा। बट सीरियसली this prices, so जब प्राइस आई we were all like what is going on guys। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अब जो पोको जितने बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा है बाकी ब्रांड्स के लिए, टफ टाइम खड़ी कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि ये कॉन्टिन्यूसली आगे भी रहेंगी। सही। मतलब लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में अब ये एक्सपेक्टेशन लोगों की बन जाती है, एक ब्रांड इमेज बन जाता है कि इफ वी हैव अ मिड रेंज सेगमेंट और हमें कोई मिड रेंज सेगमेंट में डिवाइस बाय करनी है
तो सबसे प्रायोरिटी पे वो ब्रांड रखना है जो कम पैसों में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फीचर्स, Yeah. पैसे फीचर्स के हैं। आजकल सेल फोन के अंदर एआई के फीचर्स हैं, बैटरी के फीचर्स, डुअल स्पीकर, मतलब कुछ भी हो, पोको X3 Pro हर प्राइस सेगमेंट, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में हर किसी को compete कर रहा है इन एवरी एक्सपेक्ट्स। सर पाकिस्तान में ना एवरीथिंग इज प्राइस सेंट्रिक। हम सही, कुछ भी लेने सही। जाते हैं, वी डू नॉट गो फॉर द फीचर्स। कीमत ही हाँ, पूछते हैं। कीमत। अब इस कीमत में व्हेन यू गेट समथिंग ना, तो इट फील्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। हमें शक होना शुरू हो जाता है, यार इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सही। सो दिस इज समथिंग विच the trend which has been set by Poco, and I hope they keep on going with it, Yes, because someday it might be difficult, और users को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे रहे हैं, तो I hope they keep up with this thing. I'll add to that Yeah, as well, because yeah. when I was traveling winter sports के लिए मैं अभी ऊपर गया, so Yeah. I was using a 80,000 rupees GoPro in winters. Yeah. वहाँ पे freeze हो गया था, it couldn't work, अच्छा, and I okay. had my Poco F3 on me, and it No. worked there. So the phones, Wow. when you're using them, वहाँ पे काम करते हैं. That's how the game has changed. Like Yes. if अब GoPro से आप call तो नहीं मिला Call सकते, नहीं। Instagram नहीं आ सकते. So it just gives you one feature at the time. Yep. But phone and Poco F3 आपको ज़्यादा features दे रहा है. So उस price range में it's That's a dream amazing. for That's so content good. creators. एक और Yeah. चीज इंक्लूड करता हूँ, आजकल ना हमारे यहाँ पर जो जब से कोविड आया जी। स्पेशली घर में टाइम गुजारा जा जी। रहा है, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अच्छा, यहाँ फीमेल्स के लिए भी मैं कहूँगा कि हमारी कुछ बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इंक्लूड कर रही हैं कि जी हमने अपना गेमिंग चैनल बनाना है और हमें कोई अच्छी डिवाइस चाहिए। बहुत सारी Yeah. क्यूरीज हमसे पूछ रही होती हैं। तो पोको की जो दोनों डिवाइसेज हैं वो ऐसी क्यूरी पे पूरी उतरती है कि डेडिकेटेड आपको एमुलेटर बाय करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको 4K कार्ड लगाना है, मतलब खर्चा वर्चा करना, फिर लाइट आएगी तो चलेगी। तो फोन के अंदर दोनों आप डिवाइस सब की आप कुछ- बात कर रहे हैं। दोनों डिवाइसेस दोनों, हाँ। में, दोनों डिवाइसेस में आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना गेम प्ले अपलोड कर सकते हो, इवन दो एक फोन से ही आप सारा काम कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में ये काफी कम्पिटिटिव प्राइस और काफी कम्पिटिटिव स्पेसिफिकेशन भी है। Nice. To carry on with the features, Akram, what do you think of the Poco F3 120 hertz AMOLED? Sir, you know, display? for a normal person, the refresh rate is something that you have to have a display which shows you real time thing. Right. So 120 hertz is the refresh rate, which has become the need of the day. I mean, the apps, the content we have been consuming in 2021 or 2020 is far more, it has a far more percentage than 2018 itself. Like एक साल के अंदर इतना बड़ा change आया कि every average human consumes 40 to 50% more content. And 120 hertz is something which has become, you know, a need of the day, क्योंकि कैमरा या इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ you have to have a proper display कि वो रिफ्लेक्ट बैक करे और आपको अपना आप या वो कंटेंट उतना अच्छा नज़र आए। सो अगर कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करती है, दैट इज़ समथिंग मिरेकुलस, बिकॉज ये फ्लैगशिप का फीचर है। For अच्छा। non-techie people, Okay. this is something which has been introduced in flagships. So Poco is bringing something which has been, so this is more of a flagship. मतलब अगर आप बात करें ना प्रोसेसर की, तो 860 प्रोसेसर, F3 में 870 है, F3 में 870 है, 816 X3 एंड F3 में 870 है। आसान जुबान में इसको कैसे? आसान लफ्जों में ये कि ये चिपसेट पहले लाख रुपए से ऊपर की प्राइस टैग में मिलता था, ओके। और वो एक हैवी फ़ोन कंसिडर किया जाता था। ये वही हैवी फ़ोन है, वही चीज़ है, सिर्फ कम प्राइस में। तो इसको मिड रेंज मत गिना जाए। लाइक 120 हर्ट्ज एक फ्लैगशिप का फीचर है जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। So Ukhano, जी सर। I have a question for you. As an influencer and blogger yourself, so what do you think, what features we can use of the Poco X3 Pro and F3 See, in your field? The complaint that I had with phones, जो एक चीज़ उन्होंने improve करनी थी पहले भी, वो ये थी कि you had to add on a mic. जब आप vlogging कर रहे होते या कर रहे होते, आपको mic चाहिए होता, वरना तो बड़ी अजीब सी cracking सी आवाज़ आती थी ऑडियो में। So I went on my one wheel and my bike and tested against the wind कि जब मैं wind breaker है कि नहीं इसमें, जब मैं बात recording कर रहा हूँ हवा साथ चली तो मेरी आवाज़ clear record होगी कि नहीं, और वो इसमें इन्होंने वो clear कर दी हुई है। So for me that's a add on, because वैसे वरना तो मुझे बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ती थी और मसले बन जाते और हर कोई ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता, वॉइस ओवर करना और वो चीज़ें। I think that is a very important that is a feature very for your important feature for field. me. Exactly. Any vlogger और Yes. कोई भी जो कंटेंट बनाते हुए खुद बातें कर रहा होता है, so it's very good in that sense. Great. Ali, I have a question for you. The Poco F3 is known as the beast in terms of its performance and processor. Do you agree? यस आई एग्रीड, बट मुझे ये लगता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जो प्राइस है ना वो हर बीस्ट के लिए पहले आती है, प्रायोरिटी आती है। तो प्राइस में तो नो डाउट है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जो परफॉर्मेंस को सिर्फ बीस्ट समझते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं समझते। बट पोको F3 में वो बीस्ट वाली कैटेगरी सारी अवेलेबल हैं।
इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले सैमसंग E4 पैनल जो कि एमोलेड पैनल है, ब्राइटर डिस्प्ले है, MEMC मोशन इनहेंस मोशन कंट्रोल का सपोर्ट भी मिलता है। मतलब आप अगर कोई HDR 10 प्लस का कंटेंट कंज्यूम करोगे इस फोन के अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से ये नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम के कंटेंट लोग कंज्यूम करना स्टार्ट किया है ना, दे वांट डिटेल इन डिस्प्ले कैटेगरी। तो बतौर यूजर मेरे लिए क्या फायदा जो अभी आपने मतलब आप अगर ऐसे practical यूजर terms, हैं हाँ। ऐसे यूजर हैं जो ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है Right. इन दिस पेंडेमिक इश्यूज, ऑब्वियस सी बात है कि हमने फोन से टाइम ज्यादा गुजारा है। फॉर डिस्प्ले इट इज अ बीस्ट, सही। एमोलेड पैनल E4 एंड MMC सम, मतलब सारी वो चीजें रखी गई हैं। ऑल्दो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी गोरिल्ला ग्लास 5 का रखा गया है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 870 इस टाइम हमारी मार्केट की रियलिटी ये है कि हम 100,000 प्लस से हमें ऊपर मिलता है, और ये फोन उससे हाफ अमाउंट में आ रहा है, ठीक है, विद द सेम प्रोसेसर। और अगर इस प्रोसेसर को कंपेयर करें टिल जो अब इस टाइम का एंड्रॉइड का फास्टेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन 888, तो इसकी क्लॉक स्पीड स्लाइटली बेटर है उससे। जीपीयू हमें यहाँ पर अच्छा। काफी बेटर मिलता है फॉर गेमिंग पर्पस गेमिंग करने के लिए हमें यहाँ पर टॉप ऑफ द लेवल वाली परफॉर्मेंस मिलेगी, एड्रीनो 650 जीपीयू। एंड देन अगेन वही बात जो अकरम भाई से मैं कर रहा था, आपसे कर रहा था, कि आजकल जितना भी यूजर है वो एक सेलफोन से टोटली वो काम लेता है वो जो पहले अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से ले रहा होता बस है। सही है। मतलब अगर किसी ने कोई गेमिंग करनी है या किसी ने कोई एडिटिंग टूल के लिए बिल्कुल। अपना कंप्यूटर बनाना है तो उसको 1-1.5 लाख रुपए एक्सपेंस करना पड़ता है। और उसमें वही जो मैंने चीज आपको मेंशन की थी कि UFS 3.1 स्टोरेज मैटर करती है उन लोगों के लिए क्योंकि एक सेल फोन से एडिटिंग कर रहे हैं, हैवी टास्किंग कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर रहे हैं। डिफरेंस UFS का और EMM जो स्टोरेज पहले आती थी, स्टोरेज टाइप 1 साल पहले हमें इस तरह मिलती थी, उनमें ये डिफरेंस है। जैसे हम कोई कंप्यूटर बनाते हैं, एक SSD हार्ड डिस्क लेते हैं क्योंकि उसमें हमें स्पीड ज्यादा मिलती है, सही। डाउनलोडिंग स्पीड, कन्वर्जिंग Right. स्पीड। सेम लाइक पोको F3 हमें UFS 3.1 का स्टोरेज मिलता है जिसमें हमें फास्टेस्ट जो स्टोरेज टाइप है वो मिल रहा है, जिसमें हम डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा बेटर मिलती है, कन्वर्जन रेट ज़्यादा मिलता है। किसी फ़ोन से अगर हम कोई चीज़ कन्वर्ट करते हैं, डाटा कन्वर्ट करते हैं अपनी पिक्चर्स या वीडियोस, तब भी हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है। ऑल ओवर अगर परफॉर्मेंस इस फ़ोन की देखी जाए विद डिस्प्ले, विद परफॉर्मेंस और स्टीरियो स्पीकर्स, जैसे उखानो ने बताया कि 3 माइक लगाए गए हैं जो हम आज से पहले नहीं एक्सपेक्ट करते कि किसी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हो। एक कैफे में बैठे हुए हम चाहते हैं कि हम उस बंदे की वॉइस सुने जो एक कोने में बैठा हुआ है, वो क्या बात कर रहा है। तो यू कैन जूम, यू कैन फोकस हिज वॉइस, एक ऑप्शन दिया गया है बाकायदा, उससे आप उसकी आवाज भी सुन सकते हो। और वो जो विंड कैंसलेशन, विंड नॉइस कैंसलेशन का बताया कि अगर आप व्लॉग बनाते हो या कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो या ऐसे वीडियो कंटेंट क्रिएटर हो कि पंखे के नीचे वीडियो बनानी है, तो यस पोको F3 जो है ना वो आपको टोटली सारी चीजें प्रोवाइड आपको करेगा। तजुर्बा हासिल हो चुका है। खालिद भाई, मैंने स्टार्ट किया था एक सेल फोन से, हाँ। और उस सेल फोन में मुझे ये प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जब मैंने ये YouTube स्टार्ट किया था मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है, तो मैं एक सेल फोन से बनाता था, तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, मुझे पंखा बंद करना पड़ता था। और मुल्तान में रहते हुए पंखा बंद करना 45 डिग्री में मतलब नामुमकिन है। अजीब काम था। इस फोन से हम कर सकते हैं। आतिर Okay, so Akram and Ali, we talked about some of the flagship features of the Poco X3 Pro. So आपको क्या लगता है कि हमने एक high end features एक mid range category में डाले हैं? How important do you feel these features are, and how is it going to affect the overall smartphone industry? So this has become the need of the day. So user has been looking forward to these, and Poco has been a trendsetter from quite some time. और this time तो गेम का जो बार है वो और ज़्यादा रेज कर दिया गया है. So X3 Pro offers exactly what you need, rather more than that. So we have all the powerful features in every aspect. UFS storage को ले लें या आप कैमरास को ले लें, आप स्क्रीन को लें, प्रोसेसर को लें, बैटरी को लें, बॉडी को लें, डिज़ाइन को लें, यू जस्ट नेम इट. और कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसको छुपाया नहीं गया, हर चीज़ को पावरफुल रखा गया है और इतने कम प्राइस टैग में. सो द प्रोसेसर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर जो है, दिस इज़ समथिंग जो कि हर तरह के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है. अगर आपका एक कैमरा अच्छा है और आपका प्रोसेसर कम लगा हुआ है तो वो एक चीज़ दूसरी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी और वो अच्छी इमेजेस नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा. इससे कम प्रोसेसर के साथ हमने बड़े मेगापिक्सल्स वाले कैमरा भी देखे जो परफॉर्म नहीं कर सकते. फिर यहाँ पे आपको जो 48 मेगापिक्सल है उसमें एक बड़ा सेंसर दिया गया है ताकि लाइट ज़्यादा अंदर आए और अच्छी फ़ोटोज़ निकल के आएँ और लो लाइट में भी आपके पास बेहतरीन तस्वीरें, बेहतरीन वीडियोज़ हों.
क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। अब यूज़ केस के हवाले से बात करें तो इसका हर एलिमेंट हमारे यूज़ केस पे इम्प्लीमेंट होता है। सो ओवरऑल जितना भी जिस भी एंगल से आप देखेंगे, दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन बिकम, जो एक एक्सपेक्टेशंस थी वो रियलिटी में टर्न इन हुई है। लाइक सो डेफिनेटली X3 Pro एंड दिस होल थिंग इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीडेड एंड मोर देन दैट। So in a nutshell, a complete package. यस आतिर भाई, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। एक रियलिटी है जो कि मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने ना डिस्कस नहीं की अपने यूट्यूब चैनल्स पर, खासकर मैं ज़रूर करता हूँ। अब हमारे यहाँ पर कुछ ऑफलाइन मार्केट की बाइंग ज़्यादा है, 80% ऑफलाइन मार्केट की बाइंग की जा रही है। और आजकल हम देखते हैं जो गेमर्स हैं ना, वो जापानीज़ कुछ रीफर्ब फ़ोन की तरफ जाते हैं जिन पे पीटीए का टैक्सेस भी नहीं होता। वो एक एक्स्ट्रा डिवाइस बाय करते हैं जस्ट फॉर गेमिंग पर्पसेस। तो पोको X3 Pro, जैसा कि अकरम भाई ने कहा कि एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, व्हाट गेमर्स नीड, बट इफ़ यू वांट मोर देन F3 इज़ अ बीस्ट। मतलब उसके अंदर एमोलेड पैनल और बाकी वो सारी क्वालिटीज़ डाल दी हैं जो कि अकरम भाई ने भी बताया और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो आई थिंक ये जो रीफर्ब फ़ोन खरीदे जाते हैं, पैसों को ज़ाया किया जाता है, पोको इज़ ऑफरिंग अ बेस्ट डील, पीटीए प्रूव 1 ईयर वारंटी। और हाँ, एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि मुझे भी थोड़ी देर पहले कंफर्म की गई है कि 6 मंथ्स की एलसीडी डैमेज हो जाती है या एलईडी डैमेज हो जाती है तो स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी पोको ऑफर कर रहा है। इट्स अ गुड थिंग कि आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिल रही है, वो भी स्क्रीन की। मोस्टली फोन गिर जाता है, टूट जाता है तो उसको कवर नहीं कर सकते हम लोग ना, मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल तो भाई स्पेयर पार्ट का भी इशू आता है कि स्पेयर पार्ट नहीं है। तो यस, दीज आर अ बीस्ट। पोको F3 is a beast and Poco X3 Pro what we need। और अगर आप अपना फ़ोन लेके किसी लोकल वेंडर या रिपेयर वाले के पास जाएंगे, वो आपके फ़ोन का ठीक ठाक सत्यानाश करेगा। अगर पोको फ्री रिप्लेसमेंट नहीं भी दे रहा होता या स्क्रीन रिप्लेसमेंट के ऊपर ऑफर नहीं भी होती, तब भी आई विल रिकमेंड एवरीवन कि प्रॉपर ऑफिशियल सर्विस सेंटर जाया करें। वहाँ पे आपको पार्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, स्टाफ को भी बाकायदा तौर पे कंपनी ने ट्रेन किया होता है, और वो आपकी चीज़ों में, मतलब अगर आप स्क्रीन ठीक कराने गए, बाद में आपका हेडफोन नहीं चल रहा होता, माइक नहीं चल रहा होता, तो यू हैव इश्यूज व्हेन यू गो टू लोकल वेंडर्स। बकायदा उनकी मतलब ऑलरेडी उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं, उनको वो कैपेबल होते हैं, Train कंपनी किया में जाता जॉब कर रहे थे, ट्रेंड पर्संस होते हैं रिपेयरर। तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये बहुत अच्छा इंप्लीमेंट है स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाला। कोई भी कंपनी उस तरीके से ऑफर नहीं कर रही। ऑफर्स की भी जाती है तो किसी परसेंट की, मतलब सस्ती कर दी जाती है, 3% सस्ती है। तो टोटली स्क्रीन रिप्लेसमेंट वाली ऑफर सीरियसली बहुत अच्छी है। Ukhano, tell us, how important are these digital launches for our viewers? आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ जिनका कंटेंट डिजिटली कंज्यूम हो रहा होता है, फॉर देम डिजिटल लॉन्चेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन होती है फ़ोन के बारे में। इन अली भाई और अकरम भाई ने जो बातें की हैं मुझे भी नहीं पता थी, और एज अ कंटेंट क्रिएटर क्योंकि मैं सिर्फ कैमरा और इनसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। एंड दीज आर द पीपल हु फॉर द पीपल बाय द पीपल, उन्हीं की वजह से ये लोग एक जगह पे हैं, हम लोग जगह पे हैं, सो दे ट्रस्ट अस। एंड जब हम एक फ़ोन के बारे में रिव्यू देते हैं या बात करते हैं, तो दैट्स हाउ दे डिसाइड कि ये खरीदना है कि नहीं खरीदना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मोर ऑफ दीज digital launches in the future. Thank you, Ukhano. Thank you, Atir, for being such a good co-host. And thank you to our guests for such an interesting, insightful, healthy discussion, and really enjoyed having this conversation with all of you and learning more about the Poco X3 Pro and the Poco F3.